Have you ever seen an image of Shiva? He is decked up with so many unusual things like snake around his neck, chand on his head, damru, the tiger skin. There's so many unusual things that are associated with Lord Shiva. Hi, I am Rashmi and today we are going to talk about Shiva symbolism. पता है हमारे जो भगवान हैं, जो भारत में हम जिन्हें भगवान मानते हैं, वो वैसी फाइल्स होती हैं जो बहुत हैवी होती हैं और हमारे ऋषियों ने उन्हें जिप करा होता है. What do you do when you have to mail your friend a very huge file? You zip the file, you mail it, and then your friend unzips the file to see what's there inside. You know, our sages were so intelligent. उन्होंने सब कुछ सोचा, समझा और फिर सारे कंसेप्ट्स को एक फॉर्म में डाल दिया, उनको एक रूप दे दिया. और आज क्या हो गया है, हम उस रूप को अनजिप करना ही भूल गए. हम भूल गए कि इसका मीनिंग भी कुछ हो सकता है और हम वो जिप्ड फाइल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. With Gurudev's blessings, we'll start the session now. From the last session, do you remember who Shiva was? Shiva was Ganesha's father. And what does he represent? He represents happiness. What kind of happiness he represents? किस टाइप की खुशी की बात हम कर रहे हैं? किस टाइप का bliss? किस टाइप का happiness? That happiness which is always there inside us. हमेशा हमारे अंदर होती है वो bliss, वो happiness. कभी कभी हम भूल जाते हैं, but it is always there. And that happiness is not dependent on external factors. बाहर क्या हो रहा है वो उस पर बिल्कुल dependent नहीं होती है, वो हमेशा हमारे अंदर होती है. So that is Shiva. Now when you see an image of Shiva, you will see so many things like the Trishul, third eye, Ganga, and snake, and the tiger skin, the blue color of his body, his blue neck. So many things are related to him. So many things associated. So we'll start with trident. When you see a Trishul, how many prongs it has? 3 prongs. त्रिशूल में कितने शूल होते हैं? 3. तो you know, everything in the nature has 3 properties: Rajas, Tamas and Sattva. Rajas represents mode of movement, Tamas represents mode of inertia, and Sattva is the positive energy inside us. क्या होता है, जब आपने कभी ट्रैवल किया होगा किसी फ्लाइट में, आपने देखा होगा कुछ लोग सोते ही जा रहे हैं, सोते ही जा रहे हैं, सोते ही जा रहे हैं. मतलब उनमें तमस बहुत है, वो इनर्शिया में हैं, वो टायर्ड हैं, वो रेस्ट के फेज में हैं. और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें ही करते जाते हैं, चुप ही नहीं होते, बोलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वो रुक नहीं पाते. वो क्वालिटी रिप्रेजेंट करती है कि उसमें रजस बहुत ज़्यादा है. और सत्वा जो होता है वो पॉजिटिविटी होती है, जो या तो रजस के साथ मिलके काम करती है या तो वो तमस के साथ मिलके काम करती है. तो इफ सत्वा वर्क्स विद रजस, यू डू गुड एक्टिविटीज, यू आर वेरी शार्प इन योर एक्टिविटीज और बहुत अच्छे से आप अपना काम कर सकते हो. और अगर सत्वा तमस के साथ काम करता है तो आपका रेस्ट बहुत अच्छा होता है. यू विल गेट अ गुड स्लीप, यू विल गेट गुड रेस्ट इफ सत्वा वर्क्स विद तमस. नथिंग इज बैड, ऑल 3 क्वालिटीज आर इम्पॉर्टेंट. इफ तमस वुड नॉट हैव बीन देयर, आपको नींद ही नहीं आती, आपको रेस्ट ही नहीं मिलता. और अगर रजस नहीं होता तो आपको एक्टिविटी करने की एनर्जी नहीं रहती. तो त्रिशूल क्या रिप्रेजेंट करता है? त्रिशूल टेल्स यू दैट all 3 qualities must be present inside you but in balance. So how can you balance that? You must eat good food like dal, vegetables, avoid junk food. जंक फूड कम खाना चाहिए. आई कैन नॉट से कि आप खाओ ही मत, एकदम ही छोड़ दो, बट थोड़ा कम. एक्टिविटीज़ करो, गेम्स खेलो, नॉट द मोबाइल गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग समथिंग विच इन्वॉल्व्स योर ब्रेन or some physical activity. Do yoga, do exercise, do pranayam. All this will help you balance the qualities inside you of rajas, tamas and sattva. So when all these are balanced, you will be happy. So this is one way how can you be happy. Second is the crescent moon. आपने देखा होगा शिवा के सर पर एक चांद होता है. What does that चांद represents? It represents that the time is moving. It is not waiting for anybody. In olden days, what used to happen कि लोग
चांद को देखकर बता देते थे कि डेट और टाइम क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जो सूरज है, सन, इट इज़ राउंड एवरी डे, इट डज नॉट चेंजेस इट्स शेप। लेकिन जो चांद होता है वो न्यू मून से फुल मून जाता है और फुल मून से न्यू मून जाता है, तो दोनों फेज में वो 14-14 दिन लगाता है। तो कभी वो हमें आधा दिखता है, कभी क्रेसेंट दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है, कभी राउंड दिखता है। तो ऐसे करके वो रोज 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 चेंज होता रहता है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि टाइम भागता जा रहा है। वी मस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी मस्ट यूज आवर टाइम फॉर गुड एक्टिविटीज। इफ यू रेस्ट वेल, if you play well, if you study well. Don't waste your time in daydreaming. If you'll use your time properly without wasting, you'll be happy. You'll have no regrets कि मेरे पास टाइम था, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता. You'll be happy, contented and very satisfied कि आपके पास जो टाइम था वो आपने यूटिलाइज किया अपनी फुल पोटेंशियल के लिए. तो never waste time, use your time wisely, nicely and properly. So that is what the Chand on Shiva's head represents. And the third is river Ganga coming out from Shiva's matted hair, and that represents knowledge. आपने कभी किसी नदी को देखा है कि वो बहती रहती है, रुकती नहीं. Similarly, you should never stop gaining knowledge. And why only river Ganga? इसलिए क्योंकि river Ganga का जो पानी वो कभी खराब नहीं होता. When Britishers used to rule us, they had to travel back to Britain sometimes. तो वो शिप से जाते थे और शिप पे जाते समय वो गंगा जी का पानी ले जाते थे, बिकॉज इट नेवर यूज टू गेट स्पॉइल्ड. वो कभी खराब नहीं होता है. इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन इट, हर्बल प्रॉपर्टीज इन इट एंड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. तो वो कभी खराब नहीं होता. सिमिलरली जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कभी भी खराब नहीं होती. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बुक से ही पढ़ो, जो पढ़ो अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक, नॉट एट ऑल. वो नॉलेज गेन करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है. फिर वो स्पोर्ट्स की हो सकती है, क्राफ्ट की हो सकती है, डांस की हो सकती है, आर्ट की हो सकती है, म्यूजिक की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है. बट नेवर स्टॉप गेनिंग नॉलेज. यू कैन गेन नॉलेज फ्रॉम नेचर ऑल्सो. न्यूटन के पहले कभी किसी के सामने एप्पल गिरा नहीं होगा ज़मीन पे, ऐसा तो नहीं हुआ है. बट न्यूटन वॉज ऑब्जर्वेंट. ही ट्राइड टू गेट नॉलेज फ्रॉम नेचर एंड लुक, ही बिकेम अ साइंटिस्ट. सिमिलरली यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम नेचर. ऑब्जर्व नेचर. फूल देखो, पत्तियाँ देखो, बर्ड्स देखो, चांद देखो, सूरज देखो. लर्न समथिंग फ्रॉम द नेचर. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द नेचर इज सेइंग टू यू. एंड उसके अलावा जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करते रहो. नेवर स्टॉप गेनिंग नॉलेज. सो इफ़ यू विल डू दिस, यू विल बी हैप्पी, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, एंड दैट विल मेक यू हैप्पी. सो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट. एंड द फोर्थ इज शिवाज थर्ड आई. शिवाज थर्ड आई का मतलब ये नहीं कि उनके पास 3 आंखें थी. थर्ड आई रिप्रेजेंट्स अवेयरनेस. कितनी बार ऐसा होता है कि आपने सोचा होगा यार अभी तो एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, और आप क्या करते हो, डे ड्रीम करते हो. आप किसी अच्छी एक्टिविटी में भी कभी कभी वो टाइम नहीं यूटिलाइज करते हो. अगर आप करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, यू शुड डू दैट. बट क्या होता है, आप वेट करते रहते हो कि अभी तो एग्ज़ाम के लिए टाइम है, और अचानक आपको याद आता है कि हमारे पास तो सिर्फ 1 वीक रह गया. वी जस्ट हैव 1 वीक फॉर एग्ज़ाम, 7 days and 700 pages. It's so difficult. So that is when your awareness has woken up. तब अवेयरनेस आई आपको कि हाँ मुझे ये करना है. बट अगर आप शुरू से अवेयर रहो, you know you have this much of time, you have to study this much, put little effort every day. Firstly, आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा, आपकी पढ़ाई बहुत ईजिली हो जाएगी. And secondly, you will get lot of time to do other activities that you love. And this will make you contented, peaceful, calm, and you will not panic last stage पे कि मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और मेरा कुछ भी प्रिपेयर नहीं है. और साथ ही साथ आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती रहेंगी. तो दैट विल मेक यू हैप्पी, काम, रिलैक्स, एंड यू विल फील नाइस. सो दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट. सो वॉट ऑल डिड यू लर्न टूडे? फर्स्टली कि यू शुड सी बियॉन्ड द सिम्बल्स ऑफ आवर इंडियन गॉड्स. आप उसको समझने की कोशिश करो. सेकेंडली,
आप अपनी क्वालिटीज़ को बैलेंस करो बाय ईटिंग गुड फूड, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर एंड अवॉइडिंग जंक फूड्स, अवॉइडिंग स्क्रीन टाइम। एंड उसके बाद ने ये देखा कि यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम। एंड उसके बाद यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ ऑल द टाइम। आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, एंड यू हैव टू बी अवेयर। ऑल दीज क्वालिटीज विल मेक यू अ बेटर पर्सन, अ हैप्पियर पर्सन। So we have more symbols to do, and that we will do next week. So if you want to search something, you can search, you can ask me also. So we'll do other symbols next week. If you enjoyed watching this video, like this video, subscribe to my channel, stay home, stay safe, be happy, and we'll meet next week with some more symbols of Shiva. Till then, Namaste, Om Namah Shivaya.